Assalamu alaikum student, welcome back on my channel. Today we have very important discussions related to our previous topic that was coordinate geometry. अच्छा, in coordinate geometry we selected हमने past paper question select किए थे and then we tried to solve these past paper questions. Today again we are focusing towards the paper 2 and we will select some important past paper questions and then we will try to solve these questions and I think hopefully you will all kind of problem will be beneficial for your exam preparations. So guys, हमारे पास जो आज important topic है and that is important topic is coordinate geometry paper 2 and perpendicular bisector. अच्छा बच्चों, whenever we talk about the perpendiculars, तो first of all you have to clear about the what is the meaning of the perpendiculars, कि perpendiculars की meaning क्या है. Okay, when we have a word perpendicular in our mind, तो it means कि ये understood है कि two lines make angle of 90 degree. अगर दो line, if two lines are perpendicular to each other, तो it means कि they make a angle of 90 degree with each other. अच्छा, अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं, लेट्स से दिस इज लाइन ए एंड बी. ओके, एक लाइन है. ओके, अब बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, नाउ इट इज अंडरस्टूड व्हाई, कि अगर हम ये देखते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां एक क्वाड्रेंट प्लॉट करता हूं. ये मैंने कहा कि भाई दिस इज एक्स एंड वाई. तो ये एक्स एंड वाई, तो एक्स इज पॉजिटिव है, यहां पे एक्स पॉजिटिव है और वाई भी हमारा यहां पे क्या है, पॉजिटिव है. तो हमने कहा भाई एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव है. ओके, अच्छा, अब जब यहां पे दोनों पॉजिटिव है, हमने एक लाइन प्लॉट करी है, इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन. अच्छा, हम व्हाई वी आर कॉलिंग दिस अ हॉरिजॉन्टल लाइन, भाई ये हमें पता है कि इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो इट मींस कि दिस अ हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. ओके बच्चों, मुझे ये बताओ कि भाई व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन. द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m. इसको मैंने m कह दिया, which is 0. तो slope of this line is 0. Just a minute. Sorry, continue again. अच्छा, slope of this line is 0. ये नजर आ रहा है. क्यों नजर आ रहा है कि भाई ये हमें पता है कि if a line is parallel to x axis, अगर कोई लाइन parallel to x axis है, उसका स्लोप क्या है, it will be 0. ओके, अच्छा, अब मैंने कहा भाई कि भाई now a line, it is perpendicular to this line. एक लाइन है, for example CD, it is another line which is perpendicular to this line. हमने कहा भाई perpendicular to this line है, तो and it means के I have told you if a line perpendicular to another line, तो दोनों लाइन के दरमियान what will be the angle, they will make a 90 degree angle. तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे. तो हमने कहा भाई एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं. ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी. तो बच्चों ये एंगल क्या कहला रहा है, दिस इज अ 90 डिग्री एंगल. ओके, ये हमें नजर आ रहा है, बोथ लाइन हैव 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर. परपेंडिकुलर लाइन है, थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, स्ट्रेट कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए. देखो ये स्ट्रेट कर दी. नाउ इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन और इस लाइन को मैंने नेम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन,
लेट्स से मैंने कहा कि भाई इट इज सी एंड डी, ये सी एंड डी लाइन है। तो नाउ these two lines are perpendicular to each other. Why? They are making an angle of 90 degree. So line CD is perpendicular to line AB. अच्छा, अब now what is the slope of this line? Okay, discuss करते हैं। First of all, there is one important rule of thumb. What is the rule of thumb? कि भाई अगर हमारे पास ये लाइन वन है, क्या बच्चों ये लाइन वन है और ये लाइन वन का स्लोप है 0, तो व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ लाइन 2? देयर इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन। क्या है फॉर्मूला भाई? m1 equal to minus of m2 और m2 equal minus of m1। क्या कहा बच्चों मैंने? यानी if you know the slope of one line, तो you can find out the slope of another line by taking negative reciprocal of slope। क्या किया? by taking negative reciprocal of slope। तो now m1 is negative reciprocal of m2 और m2 is negative reciprocal of m1। ये दोनों कर लो। तो अगर कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। इफ यू हैव m2 तो m1 निकाल सकते हो। इफ यू हैव m1 तो यू कैन फाइंड आउट द m2। अब नाउ which condition is applicable here? This condition. Why? You know the slope of horizontal line. It is understood कि slope of horizontal line is 0. So now you can find out this condition through this condition, slope of line 2. This is line 2 for example. Find out करो क्या होगा भाई? -1 over what is the value of m? The value of m is 0. Okay, so now m2 is infinity. What? Infinity. Okay, so slope of vertical line is infinity, so I can write that slope of m2 is infinity. क्लियर? तो ये तो तय हो गया कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो यू कैन इजीली फाइंड आउट स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कहूं कि भाई नाउ इफ यू नो द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज इंफिनिटी, so you can find out the slope of horizontal line. Yes, we can find out. How we can find out? For example, slope of vertical line m2 is infinity. So now m1 is -1 over infinity. So -1 over infinity is 0, because whenever we divide any number or constant or any thing with infinity, the answer is 0. It is the rule of mathematics. तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। तो now the answer is 0. So now it means के both condition you can apply depends on which slope value is given. Okay, for example ये तो एक condition हो गई, two line are perpendicular. What is the meaning of bisector? पहली बात, परपेंडिकुलर मीनिंग हमने क्लियर कर लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर? अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि भाई जरूरी नहीं है कि लाइन इज हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। यस, इट इज नॉट नेसेसरी कि यू विल ऑलवेज हैव अ लाइन हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। लाइन मे बी पॉजिटिवली स्लोप, it may be negatively slope,
and so on. So in that condition, what will be the perpendicular of that line? Yes, now check it here. अब हम देख लेते हैं कि ऐसी कंडीशन में perpendicular line का स्लोप क्या होगा if line is not horizontal to x axis. देख लो भाई. Yes, in that condition, what happened? For example, again you will have a coordinate system x and y. Yes, okay. अच्छा बच्चों, अगर मैं कोई लाइन इस तरह प्लॉट करता हूं, ये मैंने लाइन प्लॉट करी, ये लाइन ए एंड बी ये प्लॉट करी, ओके. अब मुझे बताओ, इज इट अ पॉजिटिवली स्लोप लाइन? यस. हाउ यू कैन से दैट? चेक कर लेते हैं बच्चों. कैसे चेक करते हैं भाई? एक जस्ट मार्क कर रहा हूं कि द वैल्यू ऑफ y is 1 here and value of x is 1 here. दोनों पॉजिटिव होंगे. क्लियर है? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस है. अगेन इट इज अ पॉजिटिव एक्सिस. y is positive here, x is positive here, तो both points are positive. मैंने 1 and 1 ले लिया. तो a is combination of point A is combination of 1 and 1. लिख सकता हूं बच्चों 1 and 1. ओके. यस. व्हाट अबाउट द पॉइंट बी? अब पॉइंट बी ले लेते हैं भाई. पॉइंट बी इज हियर कि फॉर एग्जांपल वी आर मार्किंग हियर, दिस इज द पॉइंट बी. अब मैंने यहां ले लिया है फॉर एग्जांपल इट इज 4 एंड दिस वन इज फॉर एग्जांपल 4. तो व्हाट अबाउट द पॉइंट बी? पॉइंट बी इज क्या आ रहा है? 4,4. ये आ गया पॉइंट बी. यस. कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन. क्या होता है भाई स्लोप ऑफ दिस लाइन? भाई वी नो दैट द स्लोप ऑफ लाइन, अगर ये लाइन 1 है, इट इज लाइन 1. मैंने कहा भाई इट इज लाइन 1. ये लाइन 1 कह रहा हूं. तो m1 इक्वल टू y2 minus y1 divided by x2 minus x1. सही है? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Substitute the value here. तो m1 is y2 is 4, y1 is 1, x2 is 4, y1 is x1 is 1, so it is 3/3. तो you will have answer is 1. तो ये देख लो बच्चों, आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. दैट इज पॉजिटिव नंबर. तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1. m1 is 1. तो अब मैंने कह दिया भाई स्लोप ऑफ दिस लाइन m1 is 1. तो अब मैं कह सकता हूं दिस लाइन इज अ positively sloped line. Okay. Ab now the topic is perpendicular bisector. So what will be the perpendicular of this line? Okay. The perpendicular of this line is ये लाइन C और D ले लीजिए. ओके. तो परपेंडिकुलर ऑफ दिस लाइन इज CD. इट विल बी दिस वन. तो अब देखो क्या कंक्लूजन हुआ. अगर एक लाइन पॉजिटिवली स्लोप है तो उसका परपेंडिकुलर लाइन विल बी अ नेगेटिवली स्लोप. देखो नेगेटिवली स्लोप आ रही है. यस. क्योंकि डाउनवर्ड है तो हम इस लाइन को कहते हैं नेगेटिवली स्लोप. तो अब नाउ यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ लाइन. अब देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट दीस टू पॉइंट कि भाई मुझे C की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है. जस्ट यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन. कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? अगेन m1 is you know m1 द वैल्यू. यस हमें पता है. तो मैं यहां लगा देता हूं भाई m2 क्या होगा?
m2 is -1/m1, तो क्या हो जाएगा -1/1, तो इट इज -1। तो देखो स्लोप ऑफ दिस लाइन m2 will be -1, तो इट इज नेगेटिवली स्लोप लाइन। यू गॉट माई पॉइंट। तो इसका मतलब है कि भाई ये अंडरस्टैंडिंग कि भाई ऑलवेज द परपेंडिकुलर विल बी अलोंग अ या और इट विल बी ऑन द हॉरिजॉन्टल स्लोप लाइन विच स्लोप इज 0, इट इज नॉट नेसेसरी। योर लाइन मे बी पॉजिटिवली स्लोप, उसके ऊपर भी यू कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। Similarly, your line will be maybe a negatively slope and you can draw a perpendicular on that line। ठीक है, देख लो भाई क्या होगा कि भाई अगर तुम्हारी लाइन तुम्हारी नेगेटिवली स्लोप्ड है, ये है, इसको ए और बी कह रहा हूं, सही है, नेगेटिवली स्लोप्ड है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। यू गॉट माय पॉइंट, क्योंकि अभी हम क्लियर कर चुके, इफ अ लाइन पॉजिटिवली स्लोप तो इट्स परपेंडिकुलर इज नेगेटिवली स्लोप, सो द परपेंडिकुलर ऑफ लाइन विल बी अ पॉजिटिवली स्लोप। क्या होगा बच्चों, ये होगा, ये होगा, देखो ये लाइन सीधी, ओके। सो नाउ ये तो क्लियर हो गया, तो अब यहां कंक्लूड करता हूं इस पॉइंट को, फिर आगे मूव करता हूं। क्या कहा मैंने कि भाई पहली बात ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि परपेंडिकुलर यू ड्रॉ ऑलवेज ऑन दी हॉरिजॉन्टल स्लोप लाइन। ये जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर तुम हॉरिजॉन्टल स्लोप लाइन के ऊपर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर यू कैन ड्रॉ ऑन वर्टिकली पॉजिटिवली स्लोप लाइन एज वेल एज ऑन हॉरिजॉन्ट नेगेटिवली स्लोप लाइन, ठीक है। और उसका परपेंडिकुलर उसका इनवर्स रेसिप्रोकल होगा। क्लियर, ये भी हमें पता चल गया। अच्छा, अब इनवर्स रेसिप्रोकल हमने निकाल लिया थ्रू दिस फॉर्मूला। अब वन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर हियर? क्या है भाई, ये तो हमने क्लियर कर लिया परपेंडिकुलर कैसा हो सकता है। बाइसेक्टर का मतलब है लाइन डिवाइड बिटवीन टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब है कि लाइन डिवाइड बिटवीन टू इक्वल पार्ट्स। तो जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं तो इट मींस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस के परपेंडिकुलर लाइन डिवाइड इक्वली अनदर लाइन बिटवीन टू इक्वल पार्ट्स। यानी जिसके ऊपर परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ कर रहे होगे तो वो परपेंडिकुलर उस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ करे, डिवाइड करेगा। तो बच्चों जब टू इक्वल पार्ट्स की बात करते हैं तो नाउ वी हैव अ पॉइंट इन आवर माइंड। व्हाट इज द पॉइंट इन आवर माइंड? इट मींस कि यू कैन फाइंड अ मिड पॉइंट देयर। यानी जब दो हिस्सों में डिवाइड हो गई तो इसका मतलब है कि नाउ देयर इज अ मिड पॉइंट। तो वो जहां से डिवाइड कर रही होगी दैट पॉइंट विल बी अ मिड पॉइंट फॉर दैट लाइन, ठीक है। यानी जो जिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन है, तो इट मींस कि दिस पॉइंट विल बी अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर? एंड दिस पॉइंट विल बी अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यानी ये क्या कहलाएगा? एक्चुअल में मिड पॉइंट कहलाएगा। व्हाट इज मिड पॉइंट? ओके, एंड सिमिलरली दैट विल बी अ मिड पॉइंट। ये भी क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट कहलाएगा। अब व्हेन इट इज कॉल्ड द मिड पॉइंट, सो मिड पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। तो अल्टीमेटली इफ यू फाइंड अ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट जो भी होगा वो क्या करेगा? वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है एंड इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो इट इज अ कॉमन पॉइंट फॉर बोथ लाइन, ठीक है।
यानी जो लाइन आर बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोज लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मिड पॉइंट इज अ कॉमन पॉइंट फॉर बोथ लाइन। ठीक है, कॉमन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इट मींस कि इट विल साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन ऑफ लाइन, दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हमें क्या करना है? हमें देखो क्या रिक्वायरमेंट हो गई फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। अब नाउ देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स टू फाइंड अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन। क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन के लिए रिक्वायरमेंट ये है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। For perpendicular bisector equation, क्या हो गया भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड मिड पॉइंट, ओके, दिस इज कैपिटल एम। मिड पॉइंट निकाल लो भाई। क्लियर? बता दिया कि भाई मिड पॉइंट इज अ पॉइंट विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई बोथ लाइन और बोथ लाइन ऑफ इक्वेशन। सही है। सेकंड क्या है? फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विथ कंडीशन। क्या कंडीशन है बच्चों? कंडीशन ये है कि m1 इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m2 और m2 इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m1। ये हमारे पास कंडीशन है। फाइनली form an equation। ठीक है, for perpendicular line, परपेंडिकुलर लाइन के लिए इक्वेशन फॉर्म कर दें। ठीक है, ये हमारे पास चंद स्टेप्स हैं। तो अब एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और उसको ट्राई करते हैं। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल एक लाइन m1 है, पॉजिटिवली स्लोप लाइन थी m1, ठीक है, जिसका स्लोप मैंने कहा कि भाई ये दिया हुआ था 3/2। अगर ये लिखा हुआ है तो इट मींस कि इट इज अ पॉजिटिवली स्लोप लाइन। मुझे अभी नहीं पता कौन सी लाइन थी, मैंने कहा कि भाई स्लोप ऑफ लाइन इज दिस वन। अच्छा, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन? तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन दैट इज m2। तो हम यू निकाल सकते हैं m2 इक्वल टू -1/m1। पुट करो भाई, -1/m1 इज 3/2। रिवर्स कर देंगे फ्रैक्शन को तो क्या हो जाएगा? 2/3, दैट इज m2। क्लियर? बहुत सिंपल हो गया, इनवर्स हो गया। यही बताया था। क्या हुआ था? अगर लाइन, ये माइनस, क्या कहा था? लाइन अगर पॉजिटिवली स्लोप्ड है तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी नेगेटिवली स्लोप। देखो माइनस आ रहा है। अब टेक अनदर एग्जांपल, इफ अ लाइन इज नेगेटिवली स्लोप्ड,
अगर लाइन नेगेटिवली स्लोप्ड है, इसी को नेगेटिव कर देते हैं बच्चों, ये लाइन नेगेटिवली स्लोप हो गई। ओके, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। क्या होगा भाई, m2 इक्वल टू -1/m1। तो नाउ दैट इज -1/-3/2। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो इट इज 2/3। नाउ यू गॉट योर आंसर। तो नाउ इट इज प्रूव्ड कि भाई लाइन अगर नेगेटिवली स्लोप्ड है, उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा, तो इट विल बी अ पॉजिटिवली स्लोप लाइन। ये अब देखो इसलिए बता रहा हूं ताकि व्हेन यू फॉर्म एन इक्वेशन, तो अगर कहीं कंफ्यूजन हो, मिस्टेक हो, तो यू कैन रेक्टिफाई कि नहीं यार, थियोरेटिकली और टेक्निकली इसका स्लोप ऐसा होना चाहिए, देयर इज सम मिस्टेक जो मैंने की है, तो आई हैव टू चेक दैट मिस्टेक, मुझे वो मिस्टेक चेक करनी है, तो यू कैन रेक्टिफाई योर आंसर। क्लियर? तो अब देखो यहां तक हमने बहुत एक बेसिक फाउंडेशन क्लियर कर ली है कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस के अपर लाइन which divide a perpendicular line which divide a line into two equal parts, that is called the perpendicular bisector। सेकंड मैंने कहा कि भाई जो इंपॉर्टेंट चीज की है, जब वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो देयर इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन बोथ लाइन ऑफ इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट which simultaneously satisfy both line। क्लियर? तो हमें मिड पॉइंट निकालना है, हमने कह दिया कि नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट m। सेकंड मैंने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कहा कि भाई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऑलवेज विल बी अलोंग और ऑन दी हॉरिजॉन्टल स्लोप लाइन, कि भाई हॉरिजॉन्टली स्लोप लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। इट दैट बाइसेक्टर मे बी on the positively sloped line or it may be on the negatively sloped line, depends कि what is the kind of line you have or what is the nature of line or slope of the line you have। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखो हम ये करते हैं, कमिंग वीडियो के अंदर वी स्टार्ट टू सॉल्व सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द पास्ट पेपर फ्रॉम पेपर 2, और इंशाल्लाह होपफुली कि इस टॉपिक के अंदर यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ द कंफ्यूजन। ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।